ریحان جو ہیں یہ فی الحال ہائی کورٹ میں وکالت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں آپ کے سامنے دو جملے رکھیں. آئیے میں گزارش کرتا ہوں. جزاک اللہ. قبلہ کی اجازت سے اور صدر محترم کی اجازت سے دو چار قانونی بات میں سامنے رکھوں گا جو آج صرف مسلمانوں کو نہیں، موجودہ سرکار چاہے دلی کی ہو، کلکتہ کی ہو یا یو پی کی ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانیت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول کے اوپر کمنٹ صرف رسول کے اوپر کمنٹ نہیں ہے، انسانیت کے اوپر کمنٹ ہے، عوام کے اوپر کمنٹ ہے، ہندوؤں کے اوپر کمنٹ ہے، عیسائیوں کے اوپر کمنٹ ہے. کیونکہ میرا رسول مسلمانوں کا صرف رسول نہیں ہے، میرا رسول پورے عالمین کا رسول ہے. اور ایک بات کے ساتھ میں اپنی بات اجازت اگر قبلہ کی ہو تو ایک شعر کے ساتھ میں بات اپنی شروعات کروں گا کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب خون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے وسیم رضوی اب کچھ بھی ہو، حق اپنا ہم لے کے رہیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے. ساتھیوں، اب میں ایک بات کو بتانا چلوں کہ آواز اٹھا رہے ہیں. آج ہندوستان کے دستور کے اوپر آنکھ اٹھایا گیا ہے. ہندوستان کا دستور میں قانون جاننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور قانون سمجھنا چاہیے آپ کو، تبھی آپ احتجاج میں آگے بڑھ پائیں گے. آرٹیکل 25 ہندوستان کے سمویدھان کا کہتا ہے فریڈم ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ ونس اون ریلیجن. بھائی صاحب، ہمارا مذہب ہم نہیں جانتے کتنا اول ہے آپ کے نظر میں اور کیا ہے، لیکن ہمارا مذہب ہندوستان کے دستور میں بہت اول ہے. ہندوستان کا دستور بتاتا ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ اول ہے. جس طریقے سے ہندو بھائیوں کا مذہب اول ہے، اسی طریقے سے آپ کا مذہب بھی اول ہے. اور ہمارے مذہب کہ رہنما قائد کے اوپر اگر تم نے آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو ہندوستان کا سمویدھان اور آئی پی سی کے سیکشنز کہا کرتے ہیں کہ ایسے بدتمیز شخص کو اور ایسی ناپاک نسل والے شخص کو سیدھا درجہ جو اس کا جگہ بنتا ہے وہ جیل کے اندر بنتا ہے. پہل کرنی ہے صاحب، قانون آپ کے ساتھ تھا، ہے، رہے گا، لیکن پہل کرنی ہے. میں آج یہاں سے اعلان کر کے جاتا ہوں قبلہ کی رہنمائی میں، قبلہ کی سرپرستی میں اور تمام علماءوں کی سرپرستی میں، کہ آج یہ ہمارے قائد ہیں، آج یہ ہمارے کہا جائے گارجین کسٹوڈین ہے. تو میں ان کی سرپرستی میں یہاں اعلان کر کے جاتا ہوں، چاہے انجمن ہو کہ کوئی سی بھی انجمن ہو، چاہے کوئی سی بھی اسلامک آرگنائزیشن ہو یا دیگر سوشل آرگنائزیشن ہو، اگر وہ چاہتے ہیں وسیم رضوی کے خلاف قانونی جہاد لڑنا، میں اسے جہاد کہوں گا. جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل ٹو فائنڈ جسٹس. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں انصاف لینے کے لیے، اور ہاں ہم انصاف لیں گے. قانونی طور پر ہو تو انصاف لیں گے، اگر قلم کے طور پر ہو تو انصاف لیں گے. اگر اس طریقے سے نکڑ پہ کھڑے ہو کے وسیم کے اوپر لان تان کرنا ہو تو یہ لان تان کر کے ہم انصاف لیں گے، لیکن لیں گے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. کسی کا باپ یا سینٹرل میں بیٹھنے والا کوئی بھی آقا ہم سے یہ ہمارا رائٹ نہیں چھین سکتا. یہ قانونی احتجاج کا موقع اور قانونی احتجاج کا حق یہ ہمیں سمویدھان نے دیا ہے. اور آج اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دلی میں بیٹھ کے آپ قانون بدل دیں گے، سمویدھان بدل دیں گے، تو یاد رکھیے آپ جیسے بہت آئیں، آپ کرایہ دار ہیں، یہ آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے. وہ اندوری صاحب نے کہا، رات اندوری صاحب نے، کہ جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان توڑی ہے. اور وسیم رضوی کو میں اس منچ سے کہہ دوں اور بتا دوں کہ تم تو ایک کیڑے ہو، کیڑے. تمہارے باپ بھی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور رسول اللہ کے دور میں بھی تمہارا باپ لوگ آیا تھا، کچھ نہیں کر پایا. اسلام جیسا تھا ویسا ہے اور صبح قیامت تک ویسا رہے گا. قرآن جیسا تھا، جیسا ہے،
सुबह क़यामत तक वैसा रहेगा। दामान रसूल जिस तरीके से था है उसी तरीके से रहेगा। बीबी फातिमा ज़हरा की इज्जत जिस तरीके से थी है उसी तरीके से रहेगी। हुसैन जैसा था है उसी तरीके से रहेगा। और हमारे इमाम मेहदी जिस तरीके से थे हैं उसी तरीके से रहेंगे। और एक मैं खास बात आपको बताता चलूं, मैं इस मुहिम में अपना हक और अपनी हाजिरी दर्ज कराना चाहता हूं। मैं आपकी मदद इस तरीके से कर सकता हूं कि चाहे जितने भी अंजुमन हो वो, चाहे जितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो वो आपसे पहल करें। कानूनी तौर पर मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट खड़ा हूं। चाहे मामले को सेशंस कोर्ट से लेके हायर कोर्ट तक और हायर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़े, सैयद रेहान आपके पहलू में मिलेगा, आपके बगल में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मैं अपना हक अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे ऊपर फर्ज और वाजिब है कि मैं खड़ा हूं आपके साथ। और इसी वादे के साथ, इसी जुमले के साथ मैं क़िबला के हाथ माइक देकर आपसे इजाजत चाहूंगा और दुआ चाहूंगा। और हमेशा याद रखिए, नमाजों में मलून के ऊपर लानत करिए, नमाजों में उनके ऊपर लानत करिए जो किरदार यजीद इस दौर में जिंदा कर रहे हैं। आप किरदार हुसैन इस दौर में जिंदा करिए। चाहे कुर्बानी किसी भी तरीके से देनी पड़े, याद रखिए हुसैन ने अपना खून बहाया। आज आपको खून बहाने की जरूरत नहीं है, आज आपको कलम उठाने की जरूरत है, आज आपको जबान खोलने की जरूरत है। और ये कलम, ये जबान आपका जिहाद बनेगा और फांसी का फंदा इस मलून के लिए बनेगा। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह। मुर्दाबाद। अब देखिए, हम सब पे फर्ज बन जाता है, जो भी अंजुमन वाले हैं, जो भी ऑर्गेनाइज रखते हैं, जो भी एक्टिव हैं, सोशल एक्टिव, उनको अगर उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी है तो रेहान भाई से कांटेक्ट करें। इन्होंने अब हमारे पाले में गेंद डाल दी है। अगर अब हम नहीं करते तो ये हमारी काहली होगी, हमारी ये सुस्त रवि होगी। लिहाजा अब ये हमारे पास आखिरी अनमोल रह गए हैं मस्जिद बसरावी के मौलाना हसन मेहदी साहब। ये हमारे आखिरी मुकर्रिर है। ये हम बताएंगे, अपने अंदाज में बताएंगे, क्या बताएंगे उसको। वह लानत के अलावा कोई गाली भी हम उससे नहीं बक सकते हैं। अगर गाली भी बकेंगे तो वो गाली छोटी हो जाएगी। हम उसे कुत्ता कहेंगे तो हो सकता है जहन्नम के दिन वो कुत्ता अल्लाह के हुजूर में कहेगा इसने मुझे वसीम रिजवी कहा था, इस पर भी कोई केस होना चाहिए। लिहाजा मौलाना साहब आइए और आके तो खत्म करना है, हो गया जो होना था। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लानत पे लानत बेशुमार, बेशुमार बेशुमार लानत पे लानत बेशुमार, बेशुमार बेशुमार। लानत पे लानत बेशुमार, बेशुमार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अज़ीज़ो, जैसा कि आपके सामने सारी तकरीरें हो ही चुकी हैं और ख़ास तौर से सल्लमा रेहान ने जो बात कही, मैं भी एक शेर में ही कह देता हूँ। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के, फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी ख़ानदान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी ख़ानदान बाकी है। अजीज़ों, पैगंबर इस्लाम की ज़ात वाला सिफ़ात ना मुसलमानों से मखसूस है और ना हिंदुओं से मखसूस है, न यहूदियों से मखसूस है, न क्या कहते हैं ईसाइयों से मखसूस है। नबी रहमतल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत है, पूरी कायनात इंसानियत के लिए रहमत है। लिहाजा जो भी जहां भी इंसान है उसके लिए नबी नबी रहमत है। लिहाजा हर आदमी अपनी जगह के ऊपर ये सोचे कि मैं इंसान हूं या नहीं हूं। अगर हैवान है तो बात अलग है,
इंसान है तो नबी यही है जो रहमत है। लिहाजा कायनाते पूरी कायनात के लिए जैसे परवरदिगार रब्बे आलमीन है, आलमीन का रब है, किसी आदमी ने इन दुनिया नहीं बनाई है, किसी एक खास ग्रुप ने दुनिया नहीं बनाई है, बल्कि इस दुनिया का बनाने वाला कौन है? वो रब है। अब आप उसके नाम अलग अलग लेते हैं, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है प्रभु है, कोई कहता है फला है, हमने कहा अल्लाह है, उन्होंने कहा खुदा है, किसी ने कहा गॉड है, मगर है वही, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद कायनात जिसे भी मानती है वो नबी है, नबी के अलावा कोई नहीं। लिहाजा अगर कोई अल्लाह के खिलाफ आ जाए तो हर आदमी परेशान होता है। तो जहां जहां आदमियत है, अगर कोई नबी के खिलाफ बोले तो उसे परेशान होना चाहिए। लिहाजा आज एक मलऊन शख्स ने, जबकि मैं एक जुमला कह सकता हूं, पूरी दुनिया जानती है यजीद मुसलमान था या नहीं था, मगर कोई उसे मुसलमान मानता है? नहीं हैं? नहीं मानता। यजीद मुसलमान था, कोई मुसलमान मानता नहीं। वसीम मुसलमान है, कोई मुसलमान कहने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसका हाल वही है जो यजीद का हाल है, यजीद के अलावा नहीं है। मुकम्मल अगर किसी ने उस दौर में यजीद न देखा हो, अगर कोई आपसे कहे कि भाई हमने यजीद नहीं देखा है, हम यजीद देखना चाहते हैं, तो जिसने भी उस दौर में यजीद न देखा हो वो इस दौर में वसीम को देख ले, यही यजीद है और कोई यजीद नहीं। लिहाजा आज हमारे इस एहतजाजी जलसे का मतलब यह था कि हम पूरी कायनात को दिखाएं, पूरी दुनिया को समझाएं कि मुसलमानों में किसी तरीके का तफरका नहीं है, मुसलमान एक दूसरे से जुदा नहीं है। मैंने जुमला गलत बोला है, आपने टोका नहीं। मुसलमान नहीं, इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है, इंसान एक दूसरे से जुदा नहीं है। आज भी अगर कोई मस्जिद पर हर्फ लगाए तो सारे हिंदू बोलने को तैयार है, मंदिर में कोई आग लगाए तो सारे मुसलमान बोलने को तैयार है। लिहाजा इंसानियत में कोई फर्क नहीं, हर इंसान इंसान का दर्द रखता है। लिहाजा हमने यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की है कि नबी की शान में जो भी गुस्ताखी की गई, कुरान के ऊपर जो हमला किया गया, दीन इस्लाम के ऊपर जो आंच आ रही है, हुकूमत को चाहिए कि उसे वो सेक्शन लगा के सजा दे जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हुकूमत खुद जानती। और अगर वो ये समझ रहा है कि आज हुकूमत मेरे साथ है, मैं बच जाऊंगा, तो वो याद करे कल फिरौन नहीं बचा, नमरूद नहीं बचा, हामान नहीं बचा, शद्दाद नहीं बचा, तो तेरी क्या औकात है कि तू बच जाएगा। आज दुनिया में है, कल तो वहीं जाना है, चाहे कब्र के जरिए जाए या चिता के जरिए जाए। जलना तेरी किस्मत बन गया है। यहां भी जब तक जिंदा रहेगा जलता रहेगा, जब मर जाएगा तो चिता में जला दिया जाएगा, अल्लाह के यहां जाएगा तो वो भी जहन्नम में आग में जलाएगा। लिहाजा बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तहे दिल से, रूह की गहराइयों से आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि किसी भी टाइम अगर आपको मौका मिले तो एक एक ग्रुप, एक एक अंजुमन, एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक FIR थाने में जाएं और जाने के बाद दर्ज कराएं। क्यों? इसलिए कि नबी की शान बचाना मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। मैं अकेला नबी का दिफा नहीं करूंगा,
तुम भी नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम भी नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम भी नबी का कलमा पढ़ते हो। नबी का कलमा पढ़ते हो तभी तो मुसलमान कह रहे हो अपने आप को। तो नबी खाली मौलाना बचाएंगे, आप क्या करेंगे? जितना मेरे ऊपर वाजिब है इतना ही आप पर वाजिब है कि नबी का दिफा करें। एक जुमला आप कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, मुझे भी मालूम है हमारे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर होगी, जब यूसुफ बाजार मिस्र में बेचे जा रहे थे तो एक गरीब बुढ़िया यूसुफ को खरीदने के लिए चली। एक शख्स रास्ते में मिल गया, कहने लगा कहाँ जा रही हो? कहा मिस्र के बाजार में। क्या करना है? कहा यूसुफ खरीदना। कहा तुम्हें मालूम है मिस्र का बादशाह नहीं खरीद पा रहा? कहा मुझे भी पता है। कहा फिर जा क्यों रही हो? कहा जानती हूं खरीद नहीं पाऊंगी, मगर खरीदारों में नाम तो आएगा। खरीद नहीं सकती, खरीदारों में नाम आएगा। हम कुछ कर नहीं सकते मगर दिफा करने वालों में नाम तो आएगा। बस हमने अपना नाम दिफा में लिखवाने के लिए ये एहतजाज किया है। इंशाअल्लाह FIR भी करेंगे। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार तमाम मुसलमानों की तौफीकात में इजाफा करे और जितने भी वसीम रिजवी हो या वसीम के हम फिक्र हो या वसीम को सहारा देने वाले हो या वसीम को पालने वाले हो या जिन्हें वसीम पाल रहा हो, उन सब पर कयामत तक लानत मौजूद है। आप लोग से एक इल्तिजा है कि हमारा इख्तिताम हो चुका है। हम सब मिल के उस मरदूद के ऊपर लानत भेजेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। यह भी आपका दीनी फरीजा है, सीने की पूरी ताकत के जोर लगाकर हम लोगों को नारा उसके खिलाफ लानत भेजनी है। अब हमारे सामने ये लानत का सिफत सदारी करेंगे मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी। बिस्मिल्लाह, हाथ में लेके बोलिए बोलिए।